کرنی چاہیے پرندوں کی زندگی سیف ہو جائے، بچ جائیں، بیماریوں سے بچ جائیں۔ جب ہم نے رکھے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ اچھی کرنی چاہیے، ان کی خوراک کا ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہڈی کا سوال کیا، تو ہڈی میری نظر میں دیکھیں ہر انسان کی نا ایک اپنی سوچ ہے، وہ آپ اپنی سوچ کسی بھی مسلط نہیں کر سکتے۔ تو ہر بندہ اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، سوچتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے شوق میں جو میں نے دیکھا ہے نا 99% لوگ بلڈ کی کبوتر بازی کرتے ہیں، جی بلڈ لائن بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں، اس سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن میں نے جو خود میرا پرسنل تجربہ ہے، کوئی نہ اتفاق کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے اتنے سالوں سے سیکھا ہے، اب جب آپ سچائی پہ چلنا شروع کر دیں گے نا تو ثانیہ پیدا ہو جائیں گی۔ جب آپ ایک لکیر کے فقیر اور ٹرک کی بتی کے پیچھے چلتے جائیں گے تب خرابی ہے۔ جو کبوتر باز کامیاب وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے اور جو چیز اس کو فائدہ دے رہی ہے اس کو اپنائے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ہم بھی یہی سوچتے تھے، آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں نا تو ہماری سوچ بھی یہی تھی کہ بس بلڈ لائن ہی سب کچھ، کسی کے علاقے کچھ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کر کے نہ رزلٹ نہیں آیا۔ اب جب آپ ایک بلڈ لائن پہ چھوڑ دیں گے نا تو تب خرابی ہے۔ اب میرا پرسنل تجربہ یہ ہے، جو ہم کبوتر بازی کرتے ہیں یا جو ہم نے سیکھی ہے پراپر، اس میں 70% کردار ہڈی کا کبوتر، اور کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے۔ اب میں نے پہلے بھی اپنے استاد جی کی بات کوٹ کی تھی، میں پھر ایک مرتبہ کوٹ کرتا ہوں کہ جب میری ان سے فرسٹ میٹنگ ہوئی نا، پہلی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے جوڑوں کے کبوتر دیکھے میرے، کچھ فیل پاس بھی کیے، تو انہوں نے کہا یار کبوتر استاد کو چیک کرنے تو اڑنے والے دکھاؤ، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو بات بڑی دل میں بیٹھی، پھر میں نے اڑنے والے دکھائے تو میرا کبوتر انہوں نے یوں پکڑا، اس کے پر نہیں کھولنے، آنکھ نہیں دیکھی، انہوں نے مجھے واپس پکڑا دیا۔ تو میں نے کہا ساجی مجھے بتائیں، اس کی ہڈی دیکھی انہوں نے کہا یار یہ بہت بڑا بے ٹھکا ہے، وہ ذرا وضاحت سے بتائیں، مجھے سمجھ نہیں لگی۔ انہوں نے کہا یار یہ بے ایمان کبوتر ہے، بلے میں پھنسے گا، شام کو بیٹھے گا، ورنہ صبح ٹھاپے مار کے بیٹھ جائے گا، تمہاری بات نہیں مانے گا۔ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تب کہ یار یہ یہاں بندہ یہ جادوگر ہے، یہاں میری پھرتے دیکھتا رہا۔ میں نے نہ ایسا علم دیکھا نہ سنا، اور یہ سچ بات ہے۔ اب جو میں بات کرتا ہوں، یہ بار بار یہ بات مجھے یہ مثال اس لیے دینی پڑتی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم دیکھنا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو میں اپنے استاد جی کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میرے سینئر بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ پھر ایک پوسلا کبوتر میں نے دکھایا، وہ بھی سیم انہوں نے یہ سیم الفاظ کہے انہوں نے۔ پھر ایک کبوتر تھا گلابی تار والا، اس کی انہوں نے باڈی دیکھی نا، انہوں نے یوں پکڑ دی نا، کہا سبحان اللہ، گردن اتر جائے گی، ٹائم نہیں چھوڑے گا بیٹا، گرمی کی بازی اڑانی تو ایسے پرندے رکھو۔ تو وہ بات ذہن میں بیٹھ گئی فوراً کہ یار یہ استاد جی کیا دیکھتے ہیں، ان کے پاس کون سی جادوگری ہے۔ تو پھر ان کا میں شاگرد بھی ہوا، باقاعدہ ان سے سیکھا بھی، پھر ان کے پرندے دیکھنے، جو کبوتر میرے کو پاس کر کے جاتے تھے وہ دیکھنے، تو اس سے کافی چیزیں پتہ چلی۔ آج بھی ہم جو کبوتر بازی کرتے ہیں نا، ہماری چھت پہ، میں اپنے کبوتروں کی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میرے پاس اگر 100 کبوتر پکا ہے بالفرض چھت پہ، میری ایک طبیعت ہے، میں چھت پہ جاتا ہوں آرام سے نہیں بیٹھتا۔ اگر میرے پاس کوئی مہمان آ جائیں، کوئی دوست آ جائیں، پھر تو میں ان کو ٹائم دیتا ہوں۔ پھر وہ غیر مناسب بات ہوتی ہے کہ آپ کھڈے میں چلے گئے ہیں، آپ کے دوست بیٹھے ہیں باہر، وہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اگر جب میں اکیلا ہوتا ہوں نا، چھت پہ صبح جاتا ہوں، میں 100 کا 100 کبوتر ڈیلی پکڑ کے، ابھی تک میری روٹین ہے۔ تو میرا کزن ہے، وہ مجھے ناراض بھی ہوتا ہے، یار تو ہڈیاں کھساتی ہیں کبوتروں کی، چھڑ دے، لیکن میرا ایک جنون ہے، میں جب تک دن میں 100-200 کبوتر پکڑ کے نہ دیکھ لوں مجھے سکون ہی نہیں آتا، میرا ایک شوق ہے، تو مزہ آتا ہے۔ وہ دوست کہتے ہیں جی کبوتر پھرتے چلتے دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، لیکن مجھے مزہ آتا ہے کبوتر ہاتھ میں آئے، اس کو پکڑ کے دیکھنے کا۔ تو میرے جتنے کبوتر پکے ہیں نا، اور یہ کوئی بڑی بات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور سے بچائے، تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور حرف ہر کچھ نہیں ہے، ہم انسان ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے ہم سے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو بات کہہ دی وہ 100% وہی حرف آخر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو میں نے اپنے پرسنل تجربے سے سیکھا ہے، میرے پاس 100 کبوتر اگر چھت پہ پکے ہیں، اڑ رہے ہیں، میں ان کی ایک لسٹ بنا لیتا ہوں، A+A B C D، جب پھرتے آتی ہیں تب وہ میری سوچ کے مطابق اڑتے ہیں، تو میں پھر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا فضل ہے کہ جو میں نے سیکھا، جو سمجھا، اس پہ مجھے عبور بھی تو نے دیا، اور 100% نہیں تو 90% یا 80% وہ سیم رزلٹ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک میں بات بتاتا چلوں، اگر 100 کبوتر دیکھتے ہیں نا تو میں نے 10 یا 15 کو نشان لگایا کہ یار یہ اچھے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ کبھی ٹھپے نہیں نکلے۔ تو اچھے برے کی آپ کو تمیز آ جائے، یہ اپنے شوق کے لیے کافی ہے۔ اب میں آپ کو اور بات بتاتا چلوں، جن لوگوں کو نہیں پرکھ، شوق ان کا بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ میں ہی بس ساتھ رہ گیا ہوں یا مجھے ہی پتہ ہے میرا شوق ہو رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں سمجھ، وہ 500,000 چھوڑ کے شوق پورا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، آپ 50-100 سے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔
अब मेरे पास छत पे 50 बड़ा ज़्यादा कबूतर हो तो 100 की तादाद होती है, तो उनसे हम सारे सीज़न खेल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कबूतर यानी वो बच भी जाते हैं, शौक भी हो जाता है। फ़र्क यही है कि अगर आपको समझ आ जाए तो आप हज़ारों छोड़ने की बजाय थोड़े छोड़ते हैं, थोड़े रखते हैं, अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, उसमें वक्त की बचत हो जाती है, पैसे की बचत हो जाती है, दाने की बचत हो जाती है, मेहनत भी कम होती है, तो जो भी रहती है। अब आपके पास 500 जोड़ा हो, आपको ये नहीं पता, मेरे कई दोस्त शिगिर्द ऐसे हैं जिनके बच्चे उड़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता था है कौन सा जोड़ेगा। उसकी वजह ये होती है कि रश इतना होता है, कबूतर इतने होते हैं, ना अच्छे बुरे का पता नहीं चलता। तो पहली चीज़ अगर आप प्रॉपर सीखें, इसको समझें, तो फिर आपको आसानी पैदा हो जाती है। उसके लिए जो हमने सीखा ना, ये सच बात है, पर का अपना किरदार है, दुम का अपना किरदार है, इस सारी चीज़ों का अपना अपना किरदार है, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे अहम किरदार है वो हड्डी का 70%। क्योंकि हम जब हम कबूतर सेलेक्ट करते हैं ना, यहाँ देखते हैं छत पे, तो अक्सर दोस्त बड़ा अजीब फील करते हैं कि मैं यूँ पकड़ता हूँ, पर नहीं खोल आँख नहीं देखी ये ठीक है ये नहीं ठीक, तो कोई चेहरा देख रहे होते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं, ना पर देख रहे हैं। मेन चीज़ तो आँख है। लोग ब्लड लाइन की कबूतरबाजी करते हैं, और सबसे पहले जो बंदा, और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता चलूँ, मेरे पास आप 20 बंदे बिठा दें, 20 को कबूतर पकड़ा दें, वो जब कबूतर पकड़ के देखेंगे ना, मैं गेस कर लेता हूँ कि इसको कितना इल्म है, मैं उस हिसाब से उसको फिर कबूतर दिखाता हूँ। तो ये कोई यानी तौबा नौज़ुबिल्लाह ये नहीं है कि ये कोई जादूगरी है, ऐसे नहीं। मैं उनका स्टाइल देखता हूँ, ये देख के आ रहे हैं। बेसिकली अगर आप कबूतर की बेस पे ही नहीं जाते, उसकी बेस चेक ही नहीं करते, तो आपको कबूतर का पता नहीं चल सकता। ये झूठ बात है। खाली आंख से पता उसकी अकल और नस्ल का तो चलता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये कितना अच्छा कबूतर है, ये इसकी क्वालिटी क्या है। उसकी क्वालिटी, उसकी बॉडी, और उसके बाद आप उसका पर कह सकते हैं। पर की भी एक अपनी अहमियत है। पर में जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, पर बारीक होना चाहिए। तीली जितनी बारीक होगी, और उसके साथ एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, एक पर बारीक होता है लेकिन उसकी शेप यूँ आगे से होती है टेढ़ी, बेंड हो जाते हैं आगे से पर ज़्यादा, वो नहीं ठीक। वो आप दावे से कह दें जिसके ऊपर ज़्यादा यूँ बेंड होंगे ना, एक कबूतर 1 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ सकता। आप शर्तिया कह सकते हैं, ये मेरा पर्सनल तजर्बा। जिस कबूतर के पर की शेप यूँ हल्की सी है, वो उड़ता है शाम तक। या मैं पसंद करता हूँ यूँ स्ट्रेट सीधे हों बिल्कुल पर तीनों, या बाहर की जो पर है ना यूँ सीधे हों, या हल्की सी हल्का सा खम हो। जो ज़्यादा खम है ना, यूँ जैसे टेढ़ी हो जाती हैं तो पर उनके, वो नहीं उड़ते ना, मैंने ज़िंदगी में उड़ते देखे। आप जितने अपने ठप्पे कबूतर पकड़ के देख लें, उनमें ख़राबी होगी। और अच्छा, जो हड्डी के साथ साथ एक और चीज़ की बड़ी अहमियत है, अगर 70% हड्डी है ना, तो वो 100% क्वालिटी कह सकते हैं। वो ऐसे हड्डी की शेप अच्छी भी है ना, अगर कबूतर मुलायम नहीं है वो भी नहीं उड़ता। ये भी बड़ी तयशुदा बात है। कबूतर की हड्डी अच्छी है, उसके साथ मुलायम होना बहुत ज़रूरी है कबूतर का। मुलायम जिसे हम यानी कुछ लोग अपने नाम दिए हैं, प्रेल कहते हैं कि परों से भरा हुआ कबूतर, या जत्तल भी हम कह देते हैं। या उसकी आप ये भी मिसाल दे सकते हैं कि वो हाथ में आप पकड़ते हैं तो वो हाथ से स्लिप होए। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। और आप देख लें, मेरे एक पर्सनल तजर्बे में आई है, 100 में से 2, 4, 5% कबूतर ऐसे मैंने ज़िंदगी में देखे हैं जिनकी हड्डी फ्लैट है। मैं पसंद नहीं करता फ्लैट हड्डी का कबूतर, मैं नहीं रखता अपने खुडे में। लेकिन वो 19-20 कह सकते गुड हड्डी में, उसे कहता हूँ गुड हड्डी टाइप के कबूतर आए हैं, लेकिन वो मुलायम जत्तल से शाम तक उड़े हैं। तो मुलायम होना कबूतर के लिए बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत मेरी नज़र में। और कबूतर का पर जो चमकदार होना चाहिए, उसकी जो तीली है चमक वाली होनी चाहिए। अगर सफ़ेद कबूतर है ना, तो उसमें हल्का सा येलो शेड आता है तीली में, वो बड़ा शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर ब्लैक तीली है तो उसमें चमक बड़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें गौर करने वाली हैं। तीली, चपटी तीली जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल गुलाई में ना हो, चपटी तीली बेहतरीन है। उसके ये नहीं देखे ना, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। जो कबूतर मुलायम होगा ना, उसकी तीली चपटी होगी और चमकदार होगी। जो कबूतर मुलायम होगा और उसके आप अगर देखें, उसकी आंख में भी चमक होगी। ये कुदरती चीज़ें ये आपस में मैच करती हैं। जो कबूतर खुश्क है उसकी आंख में देखें आप, चमक नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप में आपस में मुमासलत रखती हैं, तो ये आपने नोट करनी है। और जो कबूतर खुश्क है उसकी हड्डी की शेप अच्छी भी है ना, वो नहीं उड़ता। यानी वो नॉर्मल एवरेज वाइज उड़ता है, 10, 11, 12 बजे तक उड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं उड़ सकता। चमक का होना बहुत ज़रूरी है। वो मैं पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ कि तितली को आप देख लें, उसके पर पे चमक होती है, वो आप उतार दें, उड़ नहीं सकती। चमक वाला कबूतर, मुलायम कबूतर बहुत बुलंदी में जाता है। यानी गर्मी में कबूतर हमारी जो हाई फ्लाइंग कबूतर हम उड़ाते हैं, आसमानी कबूतर, उनमें सबसे कमाल चीज़ ये है कि जो बुलंदी में जाता है गर्मी में, वही परवाज़ देता है अच्छी। जो कबूतर बुलंदी में नहीं जाता वो अच्छा नहीं उड़ता। तो इसलिए आप जो कबूतर मुलायम होगा
चमकदार पर होंगे, तीली बारीक होगी, वो बहुत बुलंदी में जाता है, वही परवाज़ अच्छी देता है आपको। गर्मी में आम रूटीन में जब 40 से नीचे टेम्परेचर होता है ना, मीडियम कबूतर भी उड़ जाते हैं। लेकिन जब गर्मी आती है ना, इस साल ही देख लें या किसी बाकी भी जितने भी जेठ आते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, फिर क्वालिटी वाला कबूतर ही उड़ता है। कोई शक बेशक आपके पास जितना मर्जी अच्छा दाना पानी है, नरम मौसम में 40 से नीचे तो गोलियां काम करती हैं। जब 40 से ऊपर जाता है ना, फिर अच्छा परिंदा और क्वालिटी वाला परिंदा ही रिजल्ट देता है, और अच्छा परिंदा ही मालिक को जीत देता है, वही नाम पैदा करता है। अब 7 कबूतर उड़ा रहे होते हैं हम, एक कबूतर शाम को बैठ रहा है, 6 कबूतर 2 बजे से पहले बैठ रहे हैं, दाना पानी वही है, संभाल भी वही है, लेकिन क्या कि उस कबूतर की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें खुद इतनी ताकत है कि वो शाम को बैठ रहा है। तो इसी तरह आपने जो परिंदे चूज़ करने हैं ना जेठ के लिए, ख़ास तौर पे गर्मी की बाजी में, वो क्वालिटी वाले चाहिए। नरम दिनों में जब आप अस्सू में या बैसाख के नरम, अगर बैसाख गर्म हो तो तब भी अच्छे परिंदे की ज़रूरत पड़ती है, नरम दिनों में तो चल जाता है कि हल्के कबूतर कोई बात करता, हम एक कबूतर फेल करते हैं, यार ये 10-11 बजे वाला है, आपने उसको गोली लगा के 4-5 बजे बिठा दिया, तो उस वक्त वो कहते हैं जी आपने फेल किया था हमारा, ये 5 बजे बैठा है, वो बैठा नहीं, आपने बिठा लिया। तो ये चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन जब आप गर्मी की बाजी उड़ाते हैं और लंबी बाजी उड़ाते हैं नागे नागे की, तब क्वालिटी वाला कबूतर ही काम करता है। तो अच्छी क्वालिटी का कबूतर, अच्छे परपुरजे का कबूतर। अच्छा, मेरे तजर्बे में एक चीज़ें आई हैं, अब जो मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ पिछले 15-16 साल से, ये कबूतर मैं जेठ में उड़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उड़ते हैं और शाम तक की परवाज़ें भी देते हैं। बल्कि मेरे कबूतर शहरदारी में, यकीन जाने आप, मेरे दोस्त जो मेरे साथ अटैच हैं उनको पता है कि 5-5, 7-7, 8-8 कबूतर रात रह जाते हैं फिरतों में, और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बाब, ये नामी रात, फर्जी रात नहीं रहते, सुबह वापस भी आते हैं। तो अक्सर बाजियों में यही खराबी होती है कि मेरे जीतवार कबूतर आए, अक्सर अंधेरे में इतने नहीं लगे होते, नहीं बैठते, सुबह आ जाते हैं या नहीं भी आते बाज़ का। मकसद ये है कि कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह उड़ते हैं, ये नहीं है कि कोई सुबह हमारे यानी कि अगले के 5 बजे बैठे हैं, हमारे 12 बजे बैठ गए, हम कह रहे हैं यार हमारे नसीब में ही हार थी, वो आपके कबूतर ही हारे हुए थे। अब कबूतर हमारे उड़े हैं, शाम तक नहीं बैठ सके, कोई मसला मसाइल हो गया, वो गेम का हिस्सा है। तो अच्छे कबूतर जो है ना, वो मालिक का नाम पैदा करते हैं, गर्मी की बाजियों में वही उड़ते हैं। क्वालिटी वाला कबूतर होना चाहिए। कुछ कबूतर, अब ये कबूतर इनमें भी हल्के निकल आते हैं, जो पॉइंटों का ख़राब निकलेगा नहीं उड़ेगा शाम तक, वो 10-11 बजे तक उड़ेगा। अब जो हमारे पास कबूतर, मैं कह रहा था कि लिस्ट बना लेते हैं हम, तो उनमें कुछ हमारे घर के बड़े मेरे अच्छे पसंदीदा जोड़ों के, जिनके बच्चे पहले शाम तक उड़े भी हैं जेठ में, वो भी हल्के निकल आते हैं पॉइंटों के, वो 9-10 बजे से ज़्यादा नहीं उड़ते। लेकिन मकसद ये है कि आपको इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये कबूतर की क्या क्वालिटी है, वो तभी आती है। अपने कबूतरों को बार बार देखें। अक्सर बड़े उस्ताद ये एक बात कहते हैं कि जो आपका अच्छा कबूतर उड़ा है उसको बार बार पकड़ के देखें, तो वो बात ठीक है, लेकिन गाइड ये नहीं करते कि देखना क्या है, देख सकते बात सारी इसमें आ जाती है, आपने क्या देखना है। अब मकसद ये है कि कबूतर में आपने देखना क्या है। जब आपको, अच्छा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप तवज्जो दिला दें बस, हम देगा कि जो 6 माह का कबूतरबाज है ना, उसको भी दिखाएंगे ना कबूतर, वो भी पर खोलेगा, हड्डी पे हाथ फेरेगा। जब आप सिर्फ एक तवज्जो दिला दें, मैं एक किसी बच्चे की चाहे तवज्जो दिला दें कि आपने यार ये बेस ये देखनी है, ये चीज़ ढूंढनी है, तो फिर आसानी पैदा हो जाती है और आपको समझ आना शुरू हो जाती है। ये इसी तरह ना, जिस तरह एक गेस्ट पेपर मिल जाए सिर्फ थोड़ी और एक पूरी किताब पढ़नी पड़े, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की बात है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने 15-20 साल में या 10 साल में सीखी, तो उस्ताद का काम होता है कि जब शागिर्द, अब कुछ चीज़ें मैंने ज़िंदगी में 20 साल में सीखी हैं, मेरा शागिर्द मैं उसको 2 मिनट में बता देता हूँ। तो ये आप पे बताने पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको गाइड करेंगे, यार ये चीज़ हाईलाइट करें कि ये देखना यार ये बेस है। तो कबूतर के पर का अपना किरदार है, और एक कुदरती बात है, जिसकी हड्डी अच्छी होगी, मुलायम होगा, उसकी तीली भी अच्छी होगी, पर की शेप भी अच्छी होगी, ये कुदरती चीज़ें। जैसे मैं एक दुम की बात करता हूँ कि अगर कबूतर की दुम बारीक है ना, तो उसकी 4 चीज़ें आपस में अटैच करती हैं, उसके जोड़ भी बारीक होंगे और उसके पाँव भी बारीक होंगे। तो ये उसका ना, आप उसके ना ये क्या कहते हैं, पर की तीली भी बारीक होगी। ये दुम के साथ 3-4 चीज़ें अटैच करती हैं। दुम बड़ी हो जाएगी, उसके ऑटोमेटिकली देख लें उसकी ये टांगें ज़्यादा मोटी हो जाएंगी, जोड़ भी खुले हो जाएंगे, तो ये चीज़ें खराबी पैदा करती हैं। और ये नहीं कि कबूतर जो खुली दुम के हैं ना, हल्की सी खुली दुम के, वो भी उड़ते हैं, ये नहीं कि नहीं उड़ते। ब्रीडिंग में उनका ये फॉल्ट आता है कि अगर आपने 10 जोड़े लगाए हैं ना खुली दुम के, अगर वो 10 बच्चे निकालता है तो उसमें से 1-2 अच्छे निकालेगा, ज़्यादा ख़राब निकालेगा। इसलिए अगर अब आपके पास ऑप्शन है तो कोशिश करें अच्छे से अच्छा रखने की। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास 12 बजे वाले जोड़े हैं 4, 6 बजे वाले आपके पास हैं 6, तो जब आपके पास वो बढ़ जाए 6 बजे वाले, तो 12 बजे वाले रखने का फिर फ़ायदा नहीं है।
تو بہتری کی طرف جانا چاہیے، اچھے کبوتر کی طرف جانا چاہیے، ان کو بڑھانا چاہیے. اب میرے پاس جتنے کبوتر ہیں میں نے 2-3 جوڑوں سے بنائے ہیں ٹوٹل، اور اللہ کا فضل ہے. میں اکثر دکھاتا کہتا ہوں نا یہ 8ویں پیڑھی ہے، 9ویں پیڑھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا نا، جو اب کبوتر ہے میرے پاس ان سے بہت اچھے ہیں. وہ بھی اچھے تھے، یعنی رزلٹ دیتے تھے، اڑتے تھے، لیکن اب پوائنٹ وائز یہ ان سے بھی بہتر ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی سائنس نہیں ہے، نہ اس میں کوئی جادوگری ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایک جوڑے کے 10 بچے پلے، اس میں سے آپ دیکھتے ہیں یار یہ 3 بڑے سپر نکل آئے، ان کو جوڑ کے رکھ لیں، باقی 7 اڑا لیں. اب خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ ایک اڑ گیا، ہم کہتے ہیں یار یہ بلڈ لائن بڑی تگڑی ہے، 10 کاٹ لیں. وہ 10 میں سے ہلکے بھی نکلیں گے، اچھے بھی نکلیں گے. آپ کہیں گے یار یہ ایک بھائی تو بچے اڑا رہا ہے، یہ 4 اڑا نہیں رہے، اس کا فلانا بھائی بہت اڑا تھا، ہمارے فلاں بہت اڑا تھا. تو یہ چیزیں خرابی کی طرف جاتی ہیں.